Hello, dear students. Good morning. Welcome back to Social Studies class. In our today's Social Studies class, we are going to start a new chapter. Chapter 8 Voyages of Exploration. In this chapter, we are going to study about the age of exploration. Age of exploration refers to the time when Europeans, Portuguese, Spanish, all that explorers carried out their voyages to find out the sea route and to find out the new land. Okay, in this chapter, we are going to study about the three explorers. Okay, in this chapter, we will learn about three famous explorers whose voyages found unknown lands and the new sea routes. Now, you will be thinking, what is the meaning of voyages and what is the meaning of exploration? So, let me put some light on this. Okay. So, first, let us understand the meaning of voyages. Voyages means journey by sea. Okay, a long journey by sea. And exploration. Exploration means to travel to a known place, to travel to find out the new place. So, exploration means discovery of a known place. So, in this chapter, we are going to study about the voyages of the explorers. Okay, in this chapter, we are going to study about the three famous explorers who found out the sea route or the new land. So let's start our chapter. So let's study this chapter. In this chapter, we are going to learn about three famous explorers and their voyages. In 1400s, about 100 years before Mughals started ruling in India, so we studied that Mughals ruled India. Okay, Babur, Humayun, Akbar, Aurangzeb, Jahangir, Aurangzeb, Shah Jahan ruled India. So before their rule, before 100 years of their rule, many Europeans started going on long journey by sea to find new lands. So many Europe is a continent. Okay, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है. तो यूरोपियंस ने voyages conduct किए. They carried out voyages to find the new land or to find the sea route. So they traveled to unknown place, and to travel to unknown place is called exploration. And a voyage is a long journey by sea. So the travels to unknown place, the travel of these Europeans are called voyages of exploration. ठीक है, तो to find a new place, to find a new land, or to find the new sea route, Europeans carried out voyages of exploration. The voyages were dangerous and expensive. The voyages were not so safe. Okay, it were not safe and it were very expensive. ठीक है, तो जो भी क्रू होता है जो voyages के लिए जाता है, जो ऐसे एक्सप्लोर करता है, उन्हें बहुत खतरा होता है. ठीक है, दे हैव टू फेस डेंजर, मैनी डेंजर्स,
एंड इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. नाउ हु विल बेयर दिस एक्सपेंस? ओके, ये बहुत ही कॉस्टली है. बट सम पीपल वेंट फॉर द एडवेंचर. कुछ लोग हैं वो एडवेंचर के लिए जाते थे, वो थ्रिलिंग एक्सपीरियंस लेने के लिए वोएजेस में ज्वाइन होते थे. कुछ ऐसा मानते थे कि अगर वो न्यू लैंड फाइंड करेंगे तो वो न्यू लैंड है उसमें से उन्हें बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, उन्हें गोल्ड मिलेगा, उन्हें बहुत ही पर्ल्स और सारे ऐसे सारे रिसोर्सेस मिलेंगे. सो द voyages were dangerous and expensive, but some people went for adventure. Some believed that they would find new land full of riches, yet others went in search of sea route. और काफ़ी लोग हैं वो सी रूट फाइंड करने के लिए जाते थे. सी रूट मीन्स अ पाथवे थ्रू सी. ओके, थ्रू सी टू फाइंड द वे फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. ठीक है, तो कहीं किसी प्रॉपर लोकेशन, अपनी लोकेशन से प्रॉपर लोकेशन तक प्रॉपर वे फाइंड करने के लिए भी जाते थे. सो दे यूज टू ट्रैवल टू एन अननोन प्लेस एंड दे वांटेड टू फाइंड आउट एशिया. ओके, दे वांटेड टू फाइंड द सी रूट दैट वुड टेक देम टू द इंडीज. इंडीज यानी कि ईस्ट इंडीज. ईस्ट इंडीज यानी कि साउथ ईस्ट एशिया. एशिया भी एक कॉन्टिनेंट है. ठीक है, उसमें साउथ ईस्ट पार्ट और इंडिया. ठीक है, उन्हें क्या फाइंड करना था? इंडिया भी फाइंड करना था. Now why they wanted to find India? They wanted to find India because India was the country having many spices. Okay, so from there European merchants could bring spice and other valuable items for trade. तो यूरोपियन ट्रेडर्स है, यूरोपियन मर्चेंट्स है, बिजनेसमैन है, वो क्या करते थे? वो ऐसी जगह से स्पाइसेस लेते थे और अपने कॉन्टिनेंट में बेचते थे, सेल करते थे. एंड दिस वॉज नेसेसरी नाउ. टू फाइंड द सी रूट वॉज नाउ नेसेसरी. क्यों नेसेसरी हुआ था? बिकॉज टर्किश रूलर called Ottoman had closed the land route. तो जो लैंड रूट वो यूज़ करते थे उस पे बैन लगा दिया था, उसे टर्किश रूलर ने बंद कर दिया था. जो लैंड रूट है वो पास आउट होता था ऑटोमन की टेरिटरी से, तो उन्होंने वो रूट क्लोज करवा दिया था. इसीलिए लैंड रूट से इंपोर्ट करवाना, ट्रेडिंग करना पॉसिबल नहीं था. इसीलिए यूरोप को अभी ज़रूरत थी सी रूट की. ठीक है, इसीलिए एक्सप्लोरर्स सी रूट फाइंड कर रहे थे. मैनी ऑफ द वोएजेस टू फाइंड द न्यू ट्रेडिंग रूट वर मेड ऑन बिहाफ ऑफ द कंट्री. तो ये जो वोएजेस है, ये जो ट्रैवलिंग हो रही थी, वो ट्रैवलिंग का एक्सपेंस है वो रूलर्स पे कर रहे थे. ठीक है, रूलर ऑफ दैट कॉन्टिनेंट, रूलर ऑफ द रीजन्स इन द कॉन्टिनेंट. सो कंट्री के बिहाफ पे, उस कॉन्टिनेंट की कंट्रीज़ के बिहाफ पे जो रूलर्स है वो अपने अपने एक्सप्लोरर्स को भेज रहे थे वॉयेजेस के लिए. द रूलर्स ऑफ Portugal and Spain were the first to send the sailors on voyages. ठीक है, तो ये एक्सपेंस है वो कंट्री के बिहाफ पे रूलर्स पे कर रहे थे. द रूलर्स वेर पेइंग द एक्सपेंस एंड द सेलर्स वर सेंट. सेलर्स कौन है? जो शिप है, जो
बोट है वो चला सके, ठीक है। तो सेलर्स को एक्सप्लोरेशन के लिए भेज रहे थे। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट 3 एक्सप्लोरर्स। हम 3 मेन एक्सप्लोरर्स के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने सक्सेसफुली अननोन लैंड्स डिस्कवर की और न्यू सी रूट भी डिस्कवर किया। फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, हम पढ़ेंगे क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में। आप उनकी इमेज देख सकते हो। क्रिस्टोफर कोलंबस ऑफ जेनुआ, नाउ इन इटली, was perhaps the most famous explorer of all time. Christopher Columbus was very famous explorer. He believed that since the earth is round, वो मानते थे कि अर्थ है वो राउंड है, ठीक है, अर्थ इज राउंड। He would reach the East Indies by selling west from Europe. इसलिए वो क्या कहते थे कि अर्थ है वो राउंड है, तो वो मानते थे कि वो ईस्ट इंडीज़ यानी कि एशिया के ईस्ट एशिया पे कैसे पहुंच पाएंगे। वो पहुंच पाएंगे बाय ट्रैवलिंग टू वेस्ट, ठीक है, वो वेस्ट डायरेक्शन में, यूरोप से वेस्ट डायरेक्शन ले लेंगे और ऐसे वो पहुंचेंगे साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। तो वो मानते थे वो वेस्ट डायरेक्शन से निकलेंगे और फिर वो पहुंचेंगे एशिया तक और इंडिया तक। बट ही डिड नॉट नो, पर उन्हें पता नहीं था दैट ऑन दिस रूट ही वुड फर्स्ट रीच द अमेरिका। उन्हें ये नहीं पता था कि ये रास्ता ले रहे हैं तो पहले मुझे जो भी अननोन प्लेस मिलेगी वो अमेरिका होगी, ठीक है। सो he was not knowing that he will reach America first. Lands not known to Europe's then. ठीक है, अमेरिका आज रिकॉग्नाइज्ड है पर यूरोपियंस को, यूरोप वालों को अमेरिका के बारे में पहले कुछ नहीं पता था। तो दैट वॉज ऑल्सो एन अननोन प्लेस। सो कोलंबस रीच्ड अमेरिका फर्स्ट विथ सपोर्ट फ्रॉम स्पेनिश रूलर, ठीक है, स्पेनिश रूलर ने कोलंबस को सपोर्ट किया। कोलंबस सेट सेल इन 1492, ठीक है, इसलिए वापस उन्होंने सेल यानी कि ऐसे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, सेल यानी कि ऐसे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो कोलंबस ने वापस स्टार्ट कर दिया अपना एक्सप्लोरेशन, ठीक है। कोलंबस सेट सेल इन 1492 एंड रीच टू द आइलैंड कॉल्ड बाहामस, ठीक है। तो वो एक आइलैंड पे पहुँचे, उन्होंने एक रास्ता ढूंढा जिससे वो आइलैंड पर पहुँचे, कॉल्ड बाहामास। ही थॉट ही हैड रीच द इंडीज़, पर उन्हें लगा कि वो इंडीज़ पहुँच गए हैं, ठीक है, उन्हें लगा कि वो इंडीज़ यानी कि साउथ ईस्ट एशिया में पहुंच गए हैं। लेटर द बहामास एंड द नियर बाय आइलैंड्स वर कॉल्ड वेस्ट इंडीज। पर वो कहाँ पहुंचे थे? वेस्ट इंडीज में पहुंचे थे। ओके, द कोलंबस रीच्ड बहामास एंड द नियर बाय आइलैंड्स कॉल्ड वेस्ट इंडीज। कोलंबस मेड 3 more voyages आफ्टर दिस, ठीक है, एक बार उन्होंने अमेरिका फाइंड किया, फिर वेस्ट इंडीज़ फाइंड किया और 3 वॉयजेस उन्होंने किए थे, यानी 3 बार और उन्होंने ट्रैवलिंग किया था। ही रीच्ड सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका बट ही नेवर न्यू दैट ही हैड डिस्कवर्ड अननोन लैंड, पर उन्हें पता नहीं था कि उन्होंने एक न्यू लैंड फाइंड कर लिया है। बिकॉज ही बिलीव अंटिल हिज डैड दैट ही हैड बीन टू एशिया, ठीक है, वो उन्हें बिलीव था कि उन्होंने एशिया में ही वो गए हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने अमेरिका डिस्कवर किया है। ही बिलीव्ड दैट
until his death that he had been able to Asia. The Americas later came to be known as New World. Okay. So Christopher Columbus, instead of reaching Asia, he found New World, that is Americas. Okay, he found Americas but didn't knew that he had found Americas. He was in a belief that he had found Asia. ठीक है, कोलंबस को यही लगा था कि वो एशिया पहुंच गए हैं, ठीक है, बट वो अमेरिका, उन्होंने न्यू लैंड डिस्कवर कर ली थी. So now we will study about the second explorer, Vasco da Gama. Vasco da Gama was a Portuguese explorer. Okay, he was the explorer of Portugal. Okay, of the country Portugal. The Portuguese explorer Vasco da Gama found a direct sea route from Europe to India. So Vasco da Gama was successful in finding the sea route from Europe to India. ठीक है, his voyage was paid for by the ruler of Portugal. उनके voyages का भी एक्सपेंडिचर है, जो कॉस्ट है वो किसने पे किया था? उनके रूलर ने, ठीक है, पोर्चुगीज के किंग ने. He sailed around southern tip of Africa. ठीक है, अफ्रीका के साउथ से लेकर उन्होंने अपनी जर्नी है वो अफ्रीका से मूव किया साउथ की तरफ, और वो पहुंचे थे कैलीकट. ठीक है, इन 1498. इन 1498 ही रीच्ड कैलीकट, कोझिकोडे ऑन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. वेस्टर्न कोस्ट में वो पहुंच गए थे. आफ्टर हिज वोएज, ठीक है, आफ्टर हिज लॉन्ग जर्नी द पोर्चुगीज वर एबल टू सेट अप ट्रेडिंग पोस्ट इन इंडिया. सो पोर्चुगीज वर द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री who found out the sea route to India and who set up the trading post in India. श्रीलंका एंड सम प्लेसेस इन साउथ ईस्ट एशिया. श्रीलंका कहाँ है? इंडिया की नीचे है, तो श्रीलंका भी कहाँ हुआ? साउथ ईस्ट एशिया में हुआ. तो श्रीलंका और काफ़ी ऐसे प्लेसेस पे ट्रेडिंग पोस्ट उन्होंने सेटअप किए. ही वॉयेज्ड टू इंडिया 2 more times. वो इंडिया पे 2 बार और वो ट्रैवल करके आए. एंड डाइड इन कोचीन. वो इंडिया में ही कोचीन में उनकी डेथ हो गई इन 1528. वास्को दा गामा वॉज पोर्चुगीज एक्सप्लोरर. ठीक है, वो एक पोर्चुगीज एक्सप्लोरर थे. उनके वोएज के लिए उनके रूलर, उनके किंग ने पे किया था. वो कैसे उन्होंने वोएज किया था? उन्होंने वोएज किया था यूरोप से साउथ अफ्रीका, साउथ टिप ऑफ अफ्रीका, और साउथ टिप ऑफ अफ्रीका से कैलीकट. ठीक है, और ऐसे उन्होंने फाइंड किया था साउथ ईस्ट एशिया. ठीक है, उन्होंने फाइंड किया था वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. और उसके बाद पोर्चुगीज ने ट्रेडिंग पोस्ट सेटअप किया था इंडिया में, श्रीलंका में और साउथ ईस्ट एशिया में. वास्को दा गामा है डाइड इन इंडिया ओनली. ही डाइड एट कोची इन 1524. Now one activity is given. Where in India do we still find the traces of Portuguese way of life? Find out. So you have to find out where in India do we still find the traces of Portuguese way of life.
ठीक है, अपने इंडिया में आज भी हम कहाँ पर ऐसे हमें ट्रेसेस मिलते हैं कि जैसे जो प्रूफ है कि पहले यहाँ पर पोर्चुगीज़ थे और अभी भी उसका कुछ ना कुछ एक्सिस्टेंस दिखता है। तो वो कौन सा स्टेट है या वो कौन सा पार्ट है इंडिया में, ठीक है। सो यू हैव टू फाइंड द आंसर, ओके। तो जब वास्को दा गामा यहाँ पर आए थे, ठीक है, व्हेन ही वॉयेज टू इंडिया ही मेट द किंग ऑफ कैलिकट, ठीक है, वो कैलिकट के रूलर को मिलने जाते हैं और ये पिक्चर में आपको वो दिखता है, ठीक है। वास्को दा गामा है वो रिलीजन कौन सा फॉलो करते थे, क्रिश्चियनिटी। सो आपको ये एक हिंट है कि आपको जहाँ पर ऐसे ट्रेसेस मिल सकते हैं इंडिया में। सो यू कैन हैव अ लुक दैट हाउ वास्को दा गामा reached how he reached the Cape of Good Hope, how he reached the southern tip of Africa. This is the southern tip of Africa. So first he reached traveling via sea route to Cape of Good Hope, south tip of Africa. Then he went through Malindi, Mogadishu, and how he reached to Calicut. Okay, Calicut. Okay, now we are going to study about the third explorer, that is Ferdinand Magellan. We are going to study about Ferdinand Magellan. Ferdinand Magellan led the first voyage that went all around the earth. ठीक है, इन्होंने ऐसा ट्रैवल किया कि जिसमें उन्होंने ऑल अराउंड द अर्थ उन्होंने ट्रैवल किया। दो ही डाइड बिफोर द एंड ऑफ द वोएज, ठीक है, वोएज ख़त्म, ट्रैवल ख़त्म करने से पहले ही, सक्सेसफुल बनने से पहले ही वो उनकी डेथ हो गई। बट उन्होंने जो वर्क किया था, उन्होंने जो प्लान बनाया था, उसके अकॉर्डिंग ही इज़ गिवन द credit because he started and led the voyage. He was the leader of the voyage, of the crew. He is given the credit because he started and he was the leader. He planned everything, but in between of the voyage he died. Okay, so Ferdinand Magellan led the first voyage. वो पहला ऐसा ट्रैवलर है जिन्होंने सी रूट से ऑल ओवर द वर्ल्ड तब ट्रैवल किया था एट दैट टाइम। उनसे पहले किसी ने ऐसा नहीं किया था। दो ही डाइड बिफोर द एंड ऑफ द वोएज, ही इज गिवन द क्रेडिट बिकॉज ही स्टार्टेड एंड लेड द वोएज। मैगलन वॉज आस्क्ड बाय द रूलर ऑफ स्पेन, ठीक है, बाय द रूलर ऑफ स्पेन। स्पेन के एम्परर ने उन्हें कहा था टू फाइंड द सी रूट टू द स्पाइस आइलैंड, ठीक है। स्पेन के रूलर ने उन्हें सौंपा था, उन्हें ये टास्क दिया था टू फाइंड द सी रूट टू स्पाइस आइलैंड मोल्यूकस इन साउथ ईस्ट एशिया। ओके, ही सेल्ड फ्रॉम स्पेन इन 1519। उन्होंने स्पेन से अपना वॉयज स्टार्ट किया। ही सेल्ड फ्रॉम स्पेन, स्पेन से स्टार्ट किया इन 1519। ऑन हिज वे ही फाउंड अ चैनल, ठीक है, मैंने कहा ना उनका बहुत लंबा वॉयज है। ही ट्रैवल्ड ऑल अराउंड द अर्थ, तो ही फाउंड, रास्ते में उन्होंने एक और डिस्कवरी की। ही फाउंड अ चैनल फ्रॉम एटलांटिक ओशन टू पैसिफिक ओशन, ठीक है, दो ओशन है, एटलांटिक और पैसिफिक। तो ही फाउंड आउट द चैनल बिटवीन दिस टू, ठीक है, द चैनल विच started from Atlantic to Pacific Ocean.
This channel is now known, this channel is now called the Strait of Magellan. स्ट्रेट क्या होता है? एक नैरो चैनल होता है जो दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है. अ नैरो चैनल ऑफ वाटर दैट कनेक्ट्स और जॉइंस टू सी और टू लार्ज वाटर बॉडीज. तो उन्होंने एक चैनल डिस्कवर किया था फ्रॉम एटलांटिक टू पैसिफिक एंड दिस चैनल इज नोन एज स्ट्रेट ऑफ मैगलन आफ्टर हिज नेम. ठीक है, उन्हें ऑनर करने के लिए, उन्हें क्रेडिट देने के लिए ये स्ट्रेट का नाम क्या रखा गया है? स्ट्रेट ऑफ मैगलन. मैगलन गिव पैसिफिक ओशन इट्स नेम. जो पैसिफिक ओशन है, ठीक है, पैसिफिक ओशन विच इज़ द पीसफुल ओशन. ठीक है, पैसिफिक मीन्स पीसफुल. तो मैगलन ने पैसिफिक ओशन, एक ओशन को भी नेम दिया पैसिफिक ओशन विच मीन्स पीसफुल ओशन. बिफोर रीचिंग द स्पाइस आइलैंड, ठीक है, उनका पर्पस क्या था? स्पाइस आइलैंड पर जाना, वहाँ के लिए रूट फाइंड करना. ठीक है, रास्ता वहाँ पर के लिए फाइंड करना. सो बिफोर रीचिंग द स्पाइस आइलैंड मैगलन डाइड इन बैटल इन द फिलीपाइंस. ठीक है, मैंने कहा ना कि वॉयेजेस है वो डेंजरस होते थे क्योंकि बीच में वॉर्स भी होते थे. ठीक है, बैटल्स होते थे बीच में, क्लाइमेटिक कंडीशन अचानक से सडनली ख़राब हो जाती थी, फ्लड या स्टॉर्म भी आता था. सो ऐसी कंडीशंस जो है वो डेंजरस होती थी. तो मैगलन डाइड इन द बैटल ऑफ फिलीपाइंस. फिलीपाइंस के बैटल में, फिलीपाइंस में उनकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है. द वॉयेज टू द स्पाइस आइलैंड, तो ये जो ट्रैवलिंग है, ये जो एक्सप्लोरेशन है स्पाइस आइलैंड के लिए, एंड देयर टू स्पेन वॉज कंप्लीटेड इन 1522. तो स्पेन से स्पाइस आइलैंड और स्पाइस आइलैंड से रिटर्न स्पेन, ये पूरा जो वॉयेज है वो कब कंप्लीट हुआ था? 1522 में, बाय अ सेलर नेम्ड एलकैनो. ठीक है, बाय अ सेलर नेम्ड एलकैनो. सेलर मीन्स अ पर्सन हु सेल्स. ओके, सो एलकैनो ने वॉयेज कंप्लीट किया था ऑन देयर रिमेनिंग शिप द विक्टोरिया. ठीक है, वो लोग है ना शिप्स लेके निकले होते हैं, बट जो फाइनल शिप जो पूरा वॉयेज कंप्लीट करे तब तक मेंटेन हुई थी, जब तब तक सस्टेन हुई थी, वो कौन सी शिप थी? विक्टोरिया. ठीक है, मैगलन के साथ काफ़ी लोग थे, काफ़ी सेलर्स थे जो अलग अलग शिप्स में भी थे. और मैगलन है वो, उनका मृत्यु हो जाता है, रास्ते में ही उनकी डेथ होती है एक बैटल में, फिलीपाइंस के बैटल में. और एलकैनो है, एलकैनो अकॉर्डिंग टू द प्लान वो वॉयेज कैरी फॉरवर्ड करते हैं. वॉयेज कैरी फॉरवर्ड करते उन्हें स्पाइस आइलैंड मिल जाता है. स्पाइस आइलैंड का वॉयेज है जब वो कंप्लीट करते हैं 1522 में. कौन सी शिप होती है पूरी जर्नी के दौरान? विक्टोरिया. ओके, इतना आपको याद रखना है. The period during which the voyages of exploration were made. तो ये जो टाइम पीरियड है जब एक्सप्लोरेशन हो रहा था, ठीक है, टू फाइंड द न्यू लैंड और टू फाइंड द सी रूट, टू डिस्कवर ऑल द थिंग्स, वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड इन हिस्ट्री. ये चैप्टर है वो हिस्ट्री का है, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं. और हिस्ट्री में हमने पढ़ा कि कैसे लोगों ने, यूरोपियंस ने डिस्कवर किया, उन्हें डिस्कवर करना था साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया. तो उन्होंने कैसे अलग अलग चीज़ें डिस्कवर की. ठीक है, और ये टाइम पीरियड बहुत इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री में.
मैनी न्यू रूट्स एंड न्यू लैंड्स वर डिस्कवर्ड। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसी टाइम पे, इसी एक्सप्लोरेशंस में काफ़ी न्यू लैंड और काफ़ी न्यू रूट्स मिले थे। A large part of the world were mapped and there were many improvement in shipping। काफ़ी चीज़ों की मैप बनाई गई थी, काफ़ी रास्ते ढूंढे थे। सो many new lands were discovered। Okay, maps were made। Large parts of world were now mapped। Directions were, directions were also noted down and there were many improvements in shipping। ठीक है, शिपिंग में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स थी। ऑल दिस हेल्प द फ्यूचर एक्सप्लोरर्स। और इसी वजह से फ्यूचर एक्सप्लोरर्स को बहुत मदद मिली। इट ऑल्सो स्टार्टेड अ फियर्स कॉम्पिटिशन। ओके, एक बहुत ही फियर्स कंपटीशन, एक बहुत ही सीरियस कंपटीशन स्टार्ट हुआ यूरोपियन कंट्रीज के लिए टू सेट अप द ट्रेडिंग पोस्ट एंड कंट्रोल ट्रेड इन न्यूली डिस्कवर्ड लैंड। ये एक बहुत चैलेंज था, एक कंपटीशन था, यूरोपियंस के लिए भी था और दूसरे सिटीजन्स और दूसरी कंट्रीज़ के लिए भी था, दूसरे कॉन्टिनेंट्स के लिए भी था कि वो कैसे न्यू लैंड पे अपने ट्रेडिंग पोस्ट एस्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, मैगलन है वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं स्पेन से। ठीक है, फ्रॉम स्पेन ही स्टार्ट्स हिज वॉयेज एंड मूविंग टूवर्ड्स द साउथ part he discovered the strait of Magellan। he discovered the strait which was between Atlantic Ocean and Pacific Ocean, which is known as Magellan Strait। Then he traveled to Pacific Ocean and named the Pacific Ocean as the ocean, peaceful ocean। ओके, वो पैसिफिक ओशन को उन्होंने नेम दिया। ओके, नेम रखा उनका। बिफोर रीचिंग द स्पाइस आइलैंड, फिर वो अपने वे में वो गए थे, राइट। सो बिफोर रीचिंग द स्पाइस आइलैंड, he died here। he died in Philippines in the battle, okay, in 1521। okay, then after the voyage was further carried out by Elcano। Elcano was the sailor of the crew and he carried out the voyage and he finally reached via ship Victoria। so this is about Ferdinand Magellan, who was the first who conducted the first voyage around the world। okay, before he could reach the final and the purposeful destination, he died in a war। he died at Philippines। so in this map you can see the routes, the voyages of the discovery। ठीक है, आपको यहाँ पर सी रूट्स देखने को मिलेंगे जहाँ पर ये वॉयेजेस कैरी आउट हुई थी, जहाँ पर इन तीनों ने ट्रैवल किया था। तो पहले हम बात करते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस की। क्रिस्टोफर कोलंबस ने स्पेन से स्टार्ट किया था। ठीक है, स्पेन से उन्होंने स्टार्ट किया था और वो वेस्ट साइड गए थे। ठीक है, और वो पहुंच गए थे बाहामस आइलैंड में। उन्हें लगा था कि मैं एशिया पहुंच गया हूँ। ठीक है, ही रीच्ड द आइलैंड बाहामास बट थॉट दैट ही हैज़ रीच्ड द आइलैंड इंडीज़। he had reached Indies। later he discovered many islands। ठीक है,
and he believed that he had discovered Asia until his death. तो उन्होंने वेस्ट इंडीज़ भी ट्रैवल किया था, ठीक है, वेस्ट इंडीज़ भी उन्होंने फाइंड किया था। फिर हमने स्टडी किया था वास्को द गामा। वास्को द गामा ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी पोर्चुगीज़ से, ठीक है, उन्होंने स्टार्ट किया था पोर्चुगीज़ से। ये पोर्चुगीज़ है, यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। वास्को द गामा मूव्ड टू द साउदर्न टिप ऑफ अफ्रीका, ठीक है, साउदर्न टिप ऑफ अफ्रीका विच इज़ नोन एज केप ऑफ गुड होप, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने ट्रैवल किया था। फिर यहाँ से उन्होंने ट्रैवल किया था अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज़ नॉर्थ डायरेक्शन, और वो पहुँचे थे कैलिकट में, कैलिकट कोझिकोडे में, जो वेस्टर्न कोस्ट है इंडिया का, ठीक है। तो यहाँ पर वो पहुँचे थे। उसके बाद वो इंडिया में आए थे और इंडिया में उन्होंने कैलिकट के किंग के साथ मीटिंग भी की थी। वो इंडिया में ही वापस 2 बार वोएजेस उन्होंने कंडक्ट किया था और उनकी डेथ भी कोचीन में हुई थी। सो वास्को द गामा was successful in finding out the sea route to East Indies and to India. Then the third explorer, the famous explorer Ferdinand Magellan. Ferdinand Magellan was also a very famous explorer. He started from Spain. यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है, स्पेन से। और स्पेन से स्टार्ट करने के बाद उन्होंने पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन के बीच में जो नैरो स्ट्रेट है वो डिस्कवर किया था, ठीक है, ये स्ट्रेट है, और उसे नाम दिया गया स्ट्रेट ऑफ मैगलन। उसके बाद उन्होंने पैसिफिक ओशन भी डिस्कवर किया था, मतलब ओशन तो था ही, बट ही गेव द नेम पैसिफिक ओशन, वेरी पीसफुल ओशन। ही ट्रैवल्ड पैसिफिक ओशन, बट in the battle in Philippines he died. His voyage was further carried out by the sailor Elcano. Okay, and Elcano discovered Spice Island, okay, Moluccas. Okay students, these voyages are a very important part of the history, ठीक है, जो voyages है वो बहुत ही important part है, क्योंकि काफ़ी न्यू रूट्स और न्यू लैंड्स डिस्कवर हुए थे, ठीक है, मैप्स फॉर्म हुए थे, मैप सारे पार्ट्स जो है वो मैप में उन्हें डिस्क्राइब किया गया था। और शिपिंग में ठीक है, मैप्स में काफ़ी ऐसे न्यू डेवलपमेंट्स मिले थे, जिसके वजह से शिपिंग है उसमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट आई थी, ठीक है। सो मैप्स बने थे और शिपिंग में इम्प्रूवमेंट आई थी, काफ़ी न्यू लैंड्स डिस्कवर हुई थी और काफ़ी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी उसमें भी डेवलपमेंट आया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है अपनी हिस्ट्री का, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर, ओके, एंड यू हैव टू रीड द चैप्टर ट्वाइस, ओके, 2 times you have to read, okay. I hope you liked this chapter, okay. Read the chapter and you also have to learn the new words, that is the new explain the terms, okay, definition जो हमें बोल्ड में दी होती है चैप्टर की एंड में, तो वो भी आपको लर्न करनी है और फेयर बुक में भी
लिखना है उसे. ओके. ओके, बाय. टेक केयर.